metals. Okay, now it is time to understand what are non-metals. Non-metals क्या होते हैं? While understanding non-metals, I will make you compare that what properties a metal possesses and what properties are non-metal possesses. Also, the first topic, while we are understanding which kind of physical properties non-metal possesses, we will compare with the metals. So we separate that board into portion. Here we will write metals, and in that column I will write non-metals. Firstly, we have to understand why we call as these element metals and why we call as these element as non-metals. So all metals have a positive valency, as I discussed before, like valency of metals mostly +1, +2, +3. As you know that they are donor in nature. If we see the electronic configuration of that metal, we will see 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. That is the electronic configuration of any element that is done on one principle, that is called as Abahu principle. You will get that knowledge when you will go to higher classes. If I get time, I will make you understand how we find out these kind of electronic configuration. Okay, so देखिए जो S ब्लॉक होता है उसमें क्या होता है, एक ही ब्लॉक होता है और हम मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बट हमारे पास यहाँ पे इसके आउटर में कितने हैं, एक है, तो ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जब ये डोनेट कर देगा तो उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे हैव अ प्रॉपर्टी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे गेन पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। उसके बाद हम देखते हैं if we consider non-metals, so the valency of non-metal will be what, 4, 5, 6, 7, it could be। अब हम कंसीडर करते हैं, अगर हम क्लोरीन को कंसीडर करते हैं, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है, और इसके जो आउटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 7 होते हैं, 2, 2, 4, 5, 6 and 7। So it is very hard to lose 7 electron instead of losing 1 electron। बहुत ही कठिन है किसी को एक इलेक्ट्रॉन देना, इसके बदले कि हम 7 इलेक्ट्रॉन दें, तो क्या करता है, ये गेन कर लेता है, क्या करता है, गेन कर लेता है। तो जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, when it take 1 electron from another molecule, so it will contain minus charge on it. Is it okay? So mostly the valency of metals will be a positive and the non-metals valency would be a negative. Now moving forward, if we consider the physical property of metal, if we go physical state, अगर physical state में जाएंगे तो जितने भी metals होते हैं वो क्या होते हैं, solid होते हैं, और it can be solid, liquid and
गैस। अगर हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, क्या एक्सेप्शन होगा? जो मर्क्यूरी होती है, क्या होती है? मर्क्यूरी होती है, ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ मेटल्स। सॉलिड में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे फास्फोरस ले लीजिए, लिक्विड में अगर हम जाएंगे तो ब्रोमीन हो जाता है, और अगर हम गैसियस में जाएंगे तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये सब ले लेंगे। ठीक है, सो अगर फिजिकल स्टेट में देखेंगे तो ऑल मेटल्स पोजेसेस सॉलिड स्टेट इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी, बट इफ वी गो थ्रू द non-metals we will see solid, liquid, gas position. Okay, now moving to the next property. I hope you all get that answer. If we compare metals with non-metal, it would be easy to understand or it would be easy to learn. Now come to the brittleness. They are hard in nature. If we consider metals, they are hard in nature because their molecules are present very nearer to each other. That's why they are hard in nature. Except zinc. Zinc is a brittle element. बहुत ही नाजुक होता है. They are brittle. They are soft in nature. Why they are soft in nature? Because they are non-malleable and they are non-ductile. That is why they are soft in nature. Exception only graphite and gun. Let's understand again. ब्रिटलनेस की अगर हम बात करते हैं, अगर उसके नाजुक होने की हम बात करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो जिंक होता है वो क्या होता है? ब्रिटल होता है। If we consider non-metals, they are soft in nature, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट और डायमंड जो कि हार्ड इन नेचर होते हैं इन non-metals. Now move to the next. Give me a second. First I will erase that topic or portion, then we can consider. Now we will go to the ductility and sonority. Okay. Now our next property for the physical, that would be a ductility and sonority. क्या होता है? Metals are ductile in nature. अगर देखेंगे एग्जाम्पल क्या है इसका? कॉपर हो गया, यूज एज वायर. दे आर सोनोरस इन नेचर. आयरन हो गया आपका, स्टील हो गया जो कि एक तरह का क्या है? एलॉय होता है. दे आर सोनोरस इन नेचर. इनमें आवाज होती है. बट नॉन मेटल्स दे आर नॉट. इनमें नहीं होता है. इज इट क्लियर? Metals have that property. They are ductile in nature and sonorous in nature, but non-metals are not. Now move to the next point, that is a conductivity. Okay. Conductivity क्या होगा? Conductivity किसका
एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए और बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक है। दे shows conductivity or they can transfer electricity one atom to another, but in non-metal they are not. Don't keep in your mind that if we are saying they are ductile, they are not. If we are saying they have conductivity, they are not. But in non-metal, I am telling some exception. Like here is one more exception. Although we can say that all non-metals are non-conductor, but graphite act as good conductor. Okay? यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर इसमें कंडक्टिविटी होती है तो इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल है जो कि क्या कहला रहा है, ग्रेफाइट कहला रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। In my opinion, I am making you understand very well, and I hope that you will get the answer which you all are seeking for. आपको वो आंसर मिलेगा जिसके लिए आप ये YouTube देख रहे हैं या ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। Now the next topic or next point is lustrous. ठीक है? They are lustrous. They are, एग्जाम्पल ले लीजिए, क्रोमियम। क्रोमियम की क्या होती है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग होती है, किस पे, आयरन पे होती है, जिसकी वजह से क्या करता है, शाइन करता है। आपने घर में टैप देखे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे टैप आजकल बनते हैं, लगते हैं, तो ये कैसे शाइन दिखता है। और जब कभी कभी ये रस्टेड हो जाता है तो कैसा ये ब्लैकिश निकल आता है या ग्रेइश निकल आता है, तो क्या है, वो आयरन का बना हुआ होता है, लेकिन उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू उसको चमक दी जाती है, वो कैसा दिखता है, सिल्वर लुक लाइक दिखता है। दे आर नॉट, नॉन मेटल्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। व्हाट विल बी द एक्सेप्शन, डायमंड। डायमंड इज यूज्ड एज ऑर्नामेंट ना, ऑर्नामेंट के रूप में यूज किया जाता है। और ये क्या है, लस्ट्रस है, बहुत ही ज्यादा चमकता है। अगर नॉन मेटल के थ्रू हम कंसीडर करेंगे तो बहुत ज्यादा चमकता है। 2 point rest only. Our next point, melting and boiling point and density. They are most dense side, ठीक है, इनकी जो डेंसिटी होती है वाटर से भी ज्यादा होती है। They are highly high melting. किसके पास हाई मेल्टिंग है, मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग होती है, इसीलिए इसको यूटेंसिल्स में, एयरक्राफ्ट में, बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। They have low melting point and low tensile nature. But इसका एक्सेप्शन अगर हम देखेंगे तो डायमंड और ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है। जैसे हमने इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये देखा मेटल्स में कि सारे मेटल्स जो होते हैं फिजिकल स्टेट पे अगर देखेंगे, जो सारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड इन स्टेट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो मोस्टली क्या होते हैं न, आपके सॉलिड स्टेट में आएंगे लेकिन ब्रिटल स्टेट में आते हैं, मतलब बहुत नाजुक होते हैं, उनको आप छुएंगे तो वो ब्रेकेबल हो जाएंगे। लेकिन जो ब्रोमीन होती है वो क्या होती है, लिक्विड पाई जाती है।
Is it okay? This is all about the physical property of non-metals, but I have considered with metal so you can understand it better. Now we have only last topic, that is our chemical properties of non-metals. It's time to understand what are the chemical properties of non-metals. When non-metal combine with oxygen, it makes non-metallic oxide. यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कोई non-metal ऑक्सीजन से combine होगा तो वो क्या बनाएगा? Non-metallic oxide बनाएगा. Let's take an example and find out which kind of product it produced. This portion is called as reactant and this product is called as product. This portion is called as product. When carbon combined with oxygen, it gives rise to a carbon dioxide. It is a kind of gases. Now we have to understand how carbon and oxygen combine together and which kind of bond you can see between them. There are three types of bond. These bonds are called as chemical bond. One bond is called as covalent bond. Second one is called as ionic bond, and third one is called as coordinate bond. You will understand gradually how they bond are formed. Okay, let's see. In carbon, the outermost orbit have 4 electrons. And you can see they take in 2 atoms of oxygen. So here 1 oxygen, here 2 second oxygen. Valence electron in outer orbit of oxygen will be a 6. और ये कोई hypothetical नहीं है, ये सत्यापित है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसकी outer cell पे would be a 6. Here they will do sharing of electron and make covalent bond between us. We know that to be stable of any atoms, it is very necessary to complete their octet. That means किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके जो आउटर सरफेस होती है उस पर ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी होता है. कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में 4 है और ऑक्सीजन के पास 6 है. तो क्या करेंगे? यहाँ पे शेयरिंग होगी. क्या होगी? दे विल डू शेयरिंग. देखते हैं. ऑक्सीजन को देखते हैं पहले. 1 2 3 4 5 6 7 8. It completes its octet. Now come to the carbon. 1 2 3 4 5 6 7 8. It also completed its octet position. Now come to that another oxygen. 1 2 3 4 5 6 7 8. It also completed its octet. That is how when carbon react with oxygen, it makes carbon dioxide gas as a byproduct. I hope you will get that answer. Likewise, when sulfur combined with oxygen, it makes sulfur dioxide and this kind of gas burn with blue flame. ये जो गैस बनती है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है. कलरलेस गैस होती है और जो इसकी स्मेल होती है बहुत पिंजेंट ऑर्डर जैसी होती है. मतलब बहुत ही तीखी होती है. आपके नाक में पता चलेगा कि कुछ आपने स्मेल किया. ठीक है. So this is all about the chemical property of non-metals. Now we only alloy topic and uses of non-metal are rest. We will see that. Our next topic is uses of non-metals. Here you can see that is a symbol of silicon Si. It is denoted by or denoted by silicon Si. It is not found in free state. It found in sand particles. It is used to make electronic components.
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है, लाइक माइक्रो प्रोसेसर चिप के रूप में यूज किया जाता है सिलिकॉन का। दिस इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल्स ऑन अर्थ क्रस्ट। जो हमारी अर्थ होती है उस पे जो दूसरे स्थान पे मेटल नॉन मेटल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन कहते हैं। और फर्स्ट क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन पाया जाता है। नाउ कम टू द फास्फोरस। फास्फोरस फाउंड इन मेनी कलर्स, but we will consider only red and yellow phosphorus. It is used to making fertilizer, खाद के रूप में यूज किया जाता है फास्फोरस का। रेड फास्फोरस इज यूज्ड टू मेक मैच स्टिक हेड। जो आपके घर में माचिस होती है उसको आपने देखा है, जिसमें माचिस में उसके हेड में जो भी लगा होता है मटेरियल दैट इज मेड अप फ्रॉम दी फास्फोरस, इट इज इन रेड कलर। It is used in firework because it is explosive in nature, so it is used as a firework also. And one more thing, it is poisonous in nature, that is why it is used as a pest killer. इसीलिए इसको pest killer के रूप में यूज करते हैं। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है properties or uses of non-metals. Graphite, it is a hardest non-metal, and one more, diamond is also hardest non-metal. It is a form of carbon and diamond is also a form of carbon. It is a soft, slippery and used as a lubricant powder. It is also used in pencil lead. पेंसिल की जो ऊपर की लेड होती है उसको बनाने के लिए भी यूज होता है। आप सबने देखा अपने घर में आपकी पेंसिल होगी, उससे कंसीडर करिएगा तो जो ब्लैकिश और ग्रेइश पोर्शन होगा दैट इज मेड इट फ्रॉम दी ग्रेफाइट। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एज यू नो इट इज non-metals are not good conductor of electricity, but it is an exception that graphite is a good conductor of electricity. It is also used as electrode. electrode में भी यूज किया जाता है और मेटल इंडस्ट्री में भी मेटल बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। एलॉय अभी मैं पढ़ाऊंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो एलॉय जो बनते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल के मिलने से बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलॉय। तो मेटल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ सल्फर। सल्फर जो है या तो प्योर फॉर्म में पाया जाता है या तो मेटल सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। येलो इन कलर का होता है, इट इज येलो इन कलर। यूज टू मेक, इसका यूज किया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक और सल्फ्यूरिक H2SO4 बनाने में यूज किया जाता है, जिसमें H2SO4 दैट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका क्या है यूजेस, क्या है, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, प्लास्टिक्स बनाने में यूज होता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, तो एक्सप्लोसिव को बनाने में भी यूज होता है। एक यहाँ पे टर्म लिखा है वोल्केनाइजेशन। ये वोल्केनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो रबर इंडस्ट्री में यूज की जाती है, जिससे स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ाई जाती है किसी भी मटेरियल की, उसमें सल्फर को ऐड करके, और इस प्रोसेस को कहा जाता है वोल्केनाइजेशन। This is all about uses of non-metal. Now only one topic is rest, that is a alloy. So it is the last but not the least topic. That topic is known as alloy. An alloy is obtained by mixing two or more metals or non-metals. यहाँ पे ये बता रहा है कि जो एलॉय होता है वो या तो दो या दो से अधिक मेटल को या नॉन मेटल्स को या मेटल और नॉन मेटल्स को मिलाकर जो मिक्सिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज एलॉय। फॉर एग्जांपल ब्रास जो है ये एक तरह का okay, so our last but not the least topic, that is alloy from chapter 4, non-metals and non-metals. An alloy is obtained by mixing two or more metals or non-metals. यहाँ पे ये बता रहा है कि जो alloy है वो बनता है दो या दो से अधिक metals को मिलाने पे या दो या दो से अधिक non-metals को मिलाने पे, या हम कह सकते हैं metals और non-metals को मिलाने पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है ब्रास।
ठीक है। ब्रास जो है वो कैसे बनता है, जो ब्रास एलॉय है वो कैसे बनता है, हीटिंग ऑफ 80% ऑफ कॉपर एंड 20% ऑफ जिंक। जब जिंक और कॉपर को मिलाया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको ब्रास कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो गिफ्ट में बहुत सारी मूर्तियां या बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं उसमें वो कैसा होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश इन कलर होता है, वो किसका बना हुआ होता है, ब्रास का बना हुआ होता है, जिसमें कॉपर जो है आपका 80% एडेड होता है और जो आपका जिंक है वो 20% एडेड होता है। Here I am explaining only one property or one uses of stainless steel, how it is used, and in book you can consider so many examples are given. Alloy, स्टेनलेस स्टील को बोलते हैं जंग रहित स्टील। वो स्टील जिसमें रस्ट नहीं लगता है उसको क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इट इज मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, कार्बन, निकल एंड क्रोमियम। ये जो स्टेनलेस स्टील है वो बनती है कॉम्बिनेशन के, वो किसके किसके कॉम्बिनेशन से बनती है, आयरन, कार्बन, निकल एंड क्रोमियम के कॉम्बिनेशन से बनती है। इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो ये क्या होती है, शाइनी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और कोरोजन रेजिस्टेंस होती है। इसमें कोरोजन या जंग नहीं लगता है। यूजेस देखते हैं हम इस एलॉय के, स्टेनलेस स्टील के। ये यूटेंसिल्स में यूज किया जाता है, सर्जिकल इक्विपमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। मेडिकली अगर हम देखेंगे तो सर्जिकल के रूप में भी यूज किया जाता है और बहुत सारे यूटेंसिल्स में भी यूज किया जाता है। इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, आप बुक में कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट that chapter. Now I have covered all the topics. There is nothing to rest. I hope you all get the answer. Thank you.